Hello guys. Today daily question is 564. That is find the closest palindrome. How to find closest palindrome? We have to given a string n that's representing an integer. We have to find the closest integer. If the required palindrome is also palindrome, then we have to find closest, not including itself. If the palindrome between that and left side and right side are tie means difference between this and this are same, then we have to choose a smaller one. Also we have to find minimized between two integers. That is closest is defined as means closest is defined as minimized between two integers. Okay. So how to solve that one? Let's suppose this example 1 2 3. What is the required palindrome if left side is 1 to 1, its right side that is 131. Difference between this and this is 2. Difference between this and this is 8. What is minimum? That is 1 to 1. So answer is 1 to 1. Let's suppose another example 1 to 9. Its left side 1 to 1, its right side that satisfy the condition of palindrome that is 131. So what is minimum between them? Here minimum difference between them is 2. Here is 8. So answer required is 8. Answer 131. Also that is one possibility. So in this example we have to determine how we have to check the answer. Also let's suppose another example that is 1. What is left side that satisfied the condition of palindrome that is 0, and in other side that is 2. Also it is also palindrome, but in the question state if the required number is palindrome we have to not including itself, so we have to not take this one. So also the closest one is 0 and 2. What is minimum? Difference between them is 1. If both are same, then we have to choose smaller one. Then we have to choose a smaller one. That is 0. That is answer. Let's suppose another example that is 999. What is closest possible between if it's right side, left side 89. What is right side 101? Then the closest one is that is difference is 2. That is answer this. Also in case of this, what is left side 999 and another side that is I don't know, but the difference between this and this is 2. We have to find the difference greater than 2. In this case that is not satisfy the condition, so we have to neglect that. So how to solve this question? To solve this also in the constraint, the length of given string is lies between 1 to 18. So we have to apply the long variable because long variable is uh, almost equal to 2 raised to power 4, that is greater than 10 raised to power 18. So we have to definitely store the value of string in the long variable. So how to solve this question? To solve this question, we have to analyze some test cases. Like first test case. Let's suppose example is 1, 2, 3, 4, 5. We have to find minimum difference between this and its required palindrome. We have to find this and this between required palindrome. तो हम कहाँ थे? हाँ, हमारा था कि इसको मिनिमाइज करना है इस पूरे को
मतलब आंसर आएगा और डिफरेंस मिनिमम करना है। डिफरेंस मिनिमम कैसे होगा कि हमारा मैक्सिमम डिजिट है ना आगे की, वो कोइंसाइड कर जाए। हम ऐसा चाहेंगे कि कोइंसाइड करनी चाहिए, तो हम ऐसा तो हम आगे की हाफ डिजिट ले लेंगे। पैलिंड्रोम में तो ऐसा होता है कि हाफ सेम होता है आगे से और पीछे से, तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम आगे की हाफ सेम हो, सेम हो। तो हम ऐसे करेंगे 1 2 3 इसको ले लेंगे और पीछे की तो सेम चाहिए, तो पैलिंड्रोम होना चाहिए 1 to 1। बट ये एक आंसर पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो, अब आंसर पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या मतलब है? देखो, अब हमारा ये होता तो अभी तो आंसर सही आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, पर 1 2 3 99 होता जब आंसर हमारा ये नहीं आएगा। जब आंसर हमारा 1 2 क्या आएगा, क्या आएगा 4 2 1। समझे कुछ बेटे? जब आंसर हमारा ये आएगा मतलब कि हमें ऐसा करना है कि इसका लास्ट डिजिट एक बार प्लस करना है। जब आंसर मिनिमम आ सकता है तो माइनस करने पे भी ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, तो हम आंसर एक बार इस डिजिट को थोड़ा सा कम कर देंगे, बस एक कम करेंगे। अब ये तीन पॉसिबिलिटी तो हो गई हमारी। एक जो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं बिना लास्ट डिजिट को मॉडिफाई करे हुए, एक हम एक प्लस कर रहे हैं, और एक हम वो कर रहे हैं। समझे? बस हो गया। बस बट अब देखो, एक और प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे ट्रिपल लाइन आ गया, ट्रिपल लाइन आ गया, ये है 10,000 का मल्टीपल। 10,000, 1,000, अरे 10,000 कहाँ से हो गया? हाँ, तो 1,000 से एक कम है, तो इसके आगे एक 10,000 एक है। अब हमें ये केस और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बेस केस है 0 0, और इसके पीछे एक पैलिंड्रोम होगा, इसके एक आगे पैलिंड्रोम होगा। अब इसका पैलिंड्रोम निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, और इसका पैलिंड्रोम निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। समझे? तो अब हमें 10,000 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। ऐसे इसमें तो कितने हैं, ये टोटल 5 केस हो जाएंगे। एक तो सिंगल हो गया, एक +1 हो गया, एक -1 हो गया। अब 10,000 का मल्टीपल में देखना पड़ेगा इसके कितने जीरो हैं। 10 जीरो, 1 2 3 4, तो इसका एक -1 वाला लेंगे, एक +1 वाला लेंगे। एक -1 एक +1, दैट इज 1 दिस एंड फिर 4 बार 9। तो हमारे पास टोटल 5 केस बने। समझे? एक हम नॉर्मल नॉर्मल, फिर दूसरा है हमारा कि लास्ट डिजिट कंटिन्यूअस, फिर लास्ट, ये है लास्ट हाफ लास्ट डिजिट, लास्ट हाफ लास्ट डिजिट। इसको चेंज करेंगे, एक और +1 कर देंगे उसमें लास्ट डिजिट में, जैसे 4 आ गया था, 3 में प्लस किया तो 4 आ गया। एक बार माइनस कर देंगे, लास्ट डिजिट है ये भी, उसमें -1 कर देंगे, और बाकी को अपेंड कर देंगे। ठीक है? अब एक चौथी पॉसिबिलिटी होती है कि 999 की। वो कैसे लाएं? वो आएगा जब 10,000 में एक +1 करेंगे, तो इसका कितने जीरो है, इसमें 3 जीरो है, तो 3 जीरो आएगा और एक +1। ऐसे ये हो गया, ये हो जाए, तो इसमें एक -1 कर देंगे। 10,000 में -1 करेंगे तो 999 आएगा, 419 आएगा। ठीक है, बस यही करना है हमें। तो चौथी पॉसिबिलिटी होती है 10⁻, जो भी लेंथ है हमारी, उसमें एक +1 करके जो पैलिंड्रोम बनेगा, एक 10⁻n है -1 करके जो लेंथ बनेगा। अब 5 पॉसिबिलिटी आ गई, 5 पॉसिबिलिटी। तो आंसर होगा हमारा इन सब का मिनिमम, मिनिमम डिफरेंस किससे? एक्चुअल वाले से। एक्चुअल स्ट्रिंग का स्ट्रिंग n है। अब n में से सबका माइनस करके देखेंगे, जो मिनिमम डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझ गए? बस यही करना है हमें। तो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं ना अब डायरेक्ट। अब ये तो बताऊंगा मैं, अब देखो इसको समझते जाते हैं।
इसको एस करो। हाँ हो गया। जादू, जादूगर, हाँ ऐसा जादूगर। देखो अब बताता हूँ तुम्हें कैसे करना। देखो, हमें तो पहले तो वो दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। अब लेंथ तो निकाल ही लेंगे ना, लेंथ निकाल लिया। अब देखो, अब हाँ ये तो मैंने और के केस में होता है, इवन के केस में भी तो हो सकता है ऐसा, जैसे 1 2 95 हो जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 3। मतलब लास्ट चीज तो हमें चेक करनी ही है, भले ऑड हो या इवन हो, समझे बेटे। तो इसका आंसर 1 to 1 भी तो हो सकता था ना। ठीक है, अब इन दोनों को मिनिमम मतलब 5 पॉसिबिलिटी तो हर केस में आएगी। लास्ट डेट जो चेक करनी है हाफ की, तो हमने पहले एन लेंथ निकाल ली इसकी, ये लेंथ आ गई। अब इंडेक्स क्या होगा इसका हाफ का, जो लेंथ डिवाइड बाय 2, जो कि 2 आएगा, 4 के केस में 2। तो हमें हाफ की लेंथ निकालनी है। हाफ की लेंथ हमने क्या निकाली, आई, आई प्लस वन आएगी। अरे हाफ की लेंथ आई प्लस वन ही तो आएगी। देखो, जब लेंथ हमारा मल्टीपल 2 होगा, मतलब 4 होगा, 4 होगा तो 4 डिवाइड बाय 2 2 होगा। पर हमें इसमें तो इंडेक्स फाइंड कर रहा है, इंडेक्स आया हमारा 1, पर लेंथ तो 2 होगी ना, जो भी ये कंटिन्यूस की लेंथ होगी। क्योंकि स्टॉल फंक्शन है, स्टॉल फंक्शन ऐसी एस टी आई वो फंक्शन होता है, एस टी आई होता है वो इंटीजर के केस में होता है, ऐसे स्टॉल फंक्शन होता है वो लॉन्ग के लिए होता है, समझे। मतलब ये स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग टू लॉन्ग, बस छोटी सी बात है। स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, जो हमने हाफ लेंथ लिखा रही है ना, उसको हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे, बस ये छोटी सी बात है। लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया फर्स्ट हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ दे दिया ना। अब देखो हमें सारी पॉसिबिलिटी निकालनी है, 5 पॉसिबिलिटी होंगी। 5 पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कि हमने शुरू शुरू में पहला हाफ दिया और उस डिजिट को मॉडिफाई नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया। देखो अभी हम ये लेन परसेंटेज टू क्यों दे रहे हैं ये बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। पहले हमने देखो पहला हाफ दिया, उसको मॉडिफाई नहीं किया, फिर हमने पहला हाफ दिया, उसके लास्ट डिजिट को 1 प्लस कर दिया। ओ माय गॉड, इसके लास्ट डिजिट को मॉडिफाई कर दिया, 4 बना दिया, मतलब 1 to 4 बना दिया, ये मॉडिफाई प्लस 1 हो गया। ऐसे लास्ट डिजिट को -1 कर दिया, तो 1 to 3 है तो 2 आ गया। ये तीनों पॉसिबिलिटी पहले 3 में आ चुकी है, और लास्ट की 10 टू पावर लेंथ -1, जैसे 999 होगा, तो इसका आंसर तो 1001 होगा। तो इसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब 10 टू पावर 3 होएगा +1, या 10 टू पावर 3 -1, ये लेंथ हो गया लेंथ। अगर हाँ समझ गया ना, लेंथ +1 लेंथ -1, 10 टू पावर, क्योंकि पाव फंक्शन वर्क करेगा, 10 टू पावर 18 है, पाव फंक्शन आराम से वर्क कर सकता है, समझे। बस सारी पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब सारी पॉसिबिलिटी भेज रहे हैं और पॉसिबिलिटी में स्टोर कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटी आ गई। अब हमें इसका आंसर जो होगा मिनिमम आंसर, हम देखो n1 मतलब स्टार्टिंग का वैल्यू, स्टार्टिंग का वैल्यू दिया हुआ है हमें, जैसे स्टार्टिंग का वैल्यू 131 है, अरे 131 नहीं, क्या है वो, हाँ, अरे हाँ, स्टार्टिंग का वैल्यू देखा 195 दिया हुआ है। इससे हमें सारी पॉसिबिलिटी का मिनिमम डिफरेंस निकालना है। तो हमने क्या किया, अगर देखो कैंड 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 कैंड, हाँ मतलब तुरंत वाला लिया, तो अब कैंड मतलब सारी पॉसिबिलिटी की वैल्यू होगी। अब उसे n1 इक्वल इक्वल हुआ तो कंटिन्यू कर दी, क्योंकि हमें इक्वल तो चाहिए नहीं, जो हमें पॉसिबिलिटी में इक्वल आ सकता है, इक्वल वाला तो चाहिए ही नहीं। इक्वल कैसा आ सकता है, इक्वल आ सकता है ना जब हमारा स्ट्रिंग 1 to 1 होगा। अब तो हम हाफ चेक कर रहे हैं, हाफ के लिए तो ये इक्वल तो आ ही सकता है ना बेटे, समझे। हाँ, तो इक्वल होगा तो कंटिन्यू का मतलब इक्वल लेना चाहिए, क्वेश्चन में कहा हुआ है, देख लेना। अब हमें चाहिए एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दिस
और ऑफ एन वन भी इंटीजर है, लॉन्ग दिया हुआ है ना, मतलब लॉन्ग है, उन दोनों का डिफरेंस सबसे कम चाहिए, तो डिफरेंस लॉन्ग मैक्स मान लिया हमने सबसे पहले, वो कम है तो डिफरेंस ये हो जाएगा और आंसर हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अगर इक्वल इक्वल हुआ मतलब डिफरेंस इक्वल भी तो हो सकता है ना, जैसे कि हमने माना था 1000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस 1000 एन है, तो डिफरेंस 1 आ रहा है इधर भी और इधर 1 आ रहा है, डिफरेंस इक्वल हुआ तो इसमें से और इसमें से मिनिमम जो होगा वो हमारा आंसर होगा, जैसे ये होगा, समझ गए, इक्वल भी हो सकता है ना बेटे, तो समझ गया है। और रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट को पुश कर देंगे, मतलब आंसर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे जो हमारा आंसर होगा। अब हमें ये फंक्शन बनाना है, पॉसिबिलिटी कैसे चेक कर रहा है, पॉसिबिलिटी में हम हाफ है दिया, मतलब हाफ स्ट्रिंग दे दी, और ये क्या है लैन पर मॉड्यूलो टू, अरे इसको छोड़ो, घटिया चीज है ये। तो अब देखते हैं हम हमारा हाफ फंक्शन क्या कर रहा है। हमारा हाफ फंक्शन कुछ नहीं है, हमने क्यों दिया आखिरी वाला, ये चेक करने के लिए दिया हमारा जो वो है क्या कहते हैं स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ ऑड है, ऑड है तो मतलब लास्ट करेक्टर को हम इंक्लूड, वो लास्ट करेक्टर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 2 1 है, तो हमें तो टू लेंथ की एक अपेंड करनी है, एक टू लेंथ की वो करनी है। अगर ये ऑड हुआ तो इसको हटाना पड़ेगा ना पहले, समझे, तभी तो हम वो कर सकते हैं। इस इवन के केस में तो ये हो जाएगा इसको और इसको नहीं करना, ऑड के केस में हमें इसको हटाना पड़ेगा बीच को, और जो पिछला है उसको अपेंड करना पड़ेगा एज इट इज। बस अब देखो हमने रेस मान लिया, जो रिजल्ट है हमारा, देखो ट्राई रन करता हूँ, जैसे हमारा 1 2 3 2 1 है, तो हमारा पहले तो शुरू शुरू के केस में पॉसिबिलिटी जब जीरो होगी तो हमारी ये स्ट्रिंग आएगा, ये स्ट्रिंग आया, तो ये स्ट्रिंग आया उसको हम लेफ्ट कहते हैं, मतलब लेफ्ट साइड का है पूरा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा पहले तो लेफ्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, जो आखिरी का जीरो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रेस में इक्वल करेंगे रेस मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस जो डिजिट है इसका मॉडुलो 10 तो 3, तो शुरू शुरू में रेस क्या था 1 2 3, ऐसे मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 3 और आ जाएगा। अब ऐसे करेंगे, इसलिए हम मॉडुलो, इसलिए हम जो ऑड होगा तो डिवाइड बाय लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट का मतलब 12 आएगा, मतलब 12 3 का इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे 12 आ जाएगा, इससे ये दोबारा से केस 3 नहीं जोड़ेगा इधर, नहीं तो 3 जुड़ जाएगा, तो हम इसको मल्टीपल को हटाने के लिए इसको डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं, और 12 बचा, अब 12 बचा और 1 2 3, अब हमारा लूप चालू हो रहा है 12 से जब तक ये बड़ा होगा, इसका मॉडुलो निकाला और इसमें अपेंड कर दिया, इसका मॉडुलो निकाला इसमें अपेंड कर दिया, बस हो गया, ये करते थे। तो जो रिजल्ट था, रिजल्ट में मल्टीप्लाई 10 किया पर वैल्यू प्लस वैल्यू, वैल्यू क्या है 12 है, 12 मतलब 2 लास्ट का, तो 2 लगा दिया, मतलब 123 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, फिर इसको डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट था, लेफ्ट को 10 से डिवाइड कर दिया तो इधर रिटर्न कर दिया। बस यही है आंसर, ये आंसर, और सारे पॉसिबिलिटी में से निकाल के आंसर रिटर्न कर दिया है, मिनिमम आएगा वो आंसर होगा। आंसर तो आ ही जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। सो गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टाटा।